तो वी हैड अ डिस्कशन ओवर टॉर्क, ठीक है, टॉर्क बताया था ना. सो एनी डाउट इन टॉर्क, एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन फॉर्मूला, ठीक है. व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम, बोलिए, व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम, when theta is 90 degree. Now theta means, whenever I say theta, obviously I need to understand between two vectors it should be na. So in which two vectors this angle is there. So we had a discussion that we have something which we are rotating about this axis. This is axis, and we are applying some force here. For example, we are applying force in this direction. Right now, what is the angle? 90 degree. What is the angle? So it is the force, and this direction is r. So this is r vector and this is f. So this angle is in between, theta is in between r and f. R and f. Now what is r and what is f? F obviously force acting on a certain point, एक point पे लग रहा होगा. And what is r? R का क्या मतलब है? R is a distance from the axis to the force, from the axis to the point where force is acting, to the point where force is acting. तो इसके लिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. अच्छा, उससे पहले let's go this also, let's do this also. Now the torque, when torque is minimum, when torque is minimum, that means when theta is 0 degree or 180 degree as well. It will work for 180 degree as well. So torque equal to RF sine 180 or 0, it becomes 0. Okay, because this term becomes 0. That term is 0. Sine 0, 0. And at this point, you can write torque is RF sine 90 degree. So what it will be? Into 1. That's why it is RF, that is called maximum value. ठीक है? This is also a maximum value. And in this case, this is very interesting, and this case is when you are applying force, this is axis you can say, and you are applying a force in the direction of R, This is force, and this is R as well. And both are in same direction. When both are in same direction, it means जब दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा? सो मिनिमम टॉर्क हो जाएगा. ठीक है, ये एक एग्जांपल वही जो मैंने बोला था तुम्हें. जैसे एक ये कॉपी ले लेते हैं. इस कॉपी को ना मुझे ये ओपन करना है, ठीक है, ये पेपर ओपन. लेकिन मैं अगर फोर्स इधर लगाऊंगा, कैन आई ओपन दिस बुक? अगर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं, so if I push it, like pull it in this direction, so it will not open. I have to apply perpendicular force, or maybe force in a certain direction. When I apply force in certain direction, some component will come perpendicular to this distance. This is the point where I am applying. So this is the axis. So axis to point is R. Clear? So one force, when I apply some force in a particular direction, so one force will be, one component will be in perpendicular direction and one component in the direction of R. If R and F, the component of force, if these two are equal, अगर वो दोनों equal हो जाए या same direction में हो जाए, equal तो छोड़ो, दोनों एक direction में हो जाए, तो क्या होगा? टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क विल बी 0. जब R और F, जैसे तुमने डोर को ऐसे खींच रहे हो इस डायरेक्शन, तो डोर ओपन होगा नहीं. ठीक है, तो डोर ओपन करने के लिए फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? मे बी 90 डिग्री. सो सबसे आसानी से खुलेगा बिकॉज मैक्सिमम टॉर्क विल बी देयर. If you are not applying 90 degree, at least you need to apply on 30 degree, 60 degree, 45 degree, 10 degree, 20 degree, any angle. So if you apply at any angle, what will happen? क्या होता है? एक कंपोनेंट बन जाएगा फोर्स का किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस वेक्टर, परपेंडिकुलर टू, और दूसरा किस में हो जाएगा? पैरेलल टू डिस्टेंस वेक्टर. ठीक है, कैसे होगा वो मैंने लास्ट क्लास में भी तुम लोगों को समझाया था कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी ऐसे एक ऑब्जेक्ट है
और उस पर हम ये एक्सिस हमने मान लिया, दिस अबाउट दिस एक्सिस इट विल रोटेट एंड आई एम अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन. सो ऑब्वियसली दिस पॉइंट विल बी, this is R and this is the angle which we are talking about. This is the angle which we are talking about. So one component is in this direction, that is called F cos theta, and in this direction F sin theta. Now this is perpendicular component and this is parallel component with respect to R. R के रेस्पेक्ट में, समझ में आया? तो इस तरह से इजीली सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, एनी क्वेश्चन? सो अच्छा ये बताओ, मैक्सिमम टॉर्क कौन दे रहा है, मतलब सबसे ज्यादा टॉर्क कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट. कौन सा? एफ साइन थीटा. परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही कर रहा है और पैरेलल कंपोनेंट नहीं कर रहा है. समझ में आया? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं टॉर्क के ऊपर, देन विल सी कि तुमको समझ में आया या नहीं आया. ठीक है, हम लोगों को निकालना है टॉर्क ऑफ दिस बार विच इज फिक्स्ड एट दिस पॉइंट O, फिक्स्ड एक्सेस. अच्छा इधर नहीं ले रहे इसको, लेट मी जस्ट रिमूव इट. हाँ अभी देखो, अगर मैं इसमें अज्यूम कर दूं, व्हेन आई अज्यूम O is fixed axis, O is fixed axis, ठीक है, and we have few points, let's say A which is 10 meter away, we have another point 5 meter away that is called B, we have another point which is C at another 5 meter, ठीक है. So we have different points. Now we are applying force on them. So one force I am applying on this direction, let's say 100 Newton. So we are applying this in this direction where it is making some angle, assume that 30 degree, assume that 30 degree, ठीक है. Here I am applying some force. Oh, let's say in another direction, let's say I'm applying a force in this direction here, and let's say this force is 200 Newton. Clear? One force I'm applying in this direction which is perpendicular, and let's say it is 50 Newton. This F1, F2, F3, and the last force which we are applying will be in this direction, and that is let's say 100. I'll take 200 now. ठीक है, 200. This is F4, and let's say angle is 45 degree. If I'll take, the problem will be it will give some value na 1/√3 and all. So I'll take a simple value that let's say it is 30 degree. ठीक है, maybe √3 will come, but no issues. Let's say 30 degree here. Now find, the question is find the torque, find the net torque. Torque is a vector quantity or not? Tell me this. Okay, find the torque about point O, which is a fixed axis. O point क्या है? Fixed axis. So whenever they ask find out torque, they have to give a point about which they want. ठीक है, मतलब टॉर्क निकालने के लिए एक ऐसा पॉइंट पता तो होना चाहिए किस डायरेक्शन में घूम रहा है, किधर घूम रहा है ना, तो ऐसे पता होना चाहिए. तो उसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? उसको पता करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक्सिस पता करना पड़ता है. क्या पता करना पड़ता है? तो बोलो क्वेश्चन में अगर कोई पूछेगा कि टॉर्क निकालो तो क्या वो एक्सिस देना पड़ेगा उसको या नहीं? तो वैसे वो तुम्हें देगा. ठीक है, तो एक्सिस मिलेगा. जैसे मैंने एक्सिस कहां दे दिया अभी? ओ, पहला देखो ध्यान से देखना, ये मैंने ऐसे कर लेते हैं, अबाउट पॉइंट O, ये फर्स्ट है. आई कैन डू द सेम थिंग फॉर अबाउट पॉइंट A. I can do same thing for point B. I can do the same thing for point C. ठीक है? So if you solve these 4 questions now, you will get all clarification in this
टॉर्क टॉपिक। इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि टॉर्क कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत आसान। तो पहला एक मैं करा देता हूं, फिर 3 तुम्हारे लिए होमवर्क। ठीक है, ठीक। लेकिन अगर नहीं करोगे तो फिर तो कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्या ही करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सोचो इसके बारे में कि जैसे व्हाट इज द एक्सिस। बताओ एक्सिस कहां पर है? एज पर द क्वेश्चन फर्स्ट वन, वेयर इज द एक्सिस? तुम 4 हो ना, वहां चल जाओ पीछे, वहां से कम से कम दिखेगा तो। यहां से क्या ही दिखता है? हाँ, तुम 4 लोग, तुम दोनों भी। हाँ, नहीं दिखता है, मैं मुझे हटना पड़ता है जब जाके दिखता है, वहां से नहीं दिखता सही से। या छोटा बेंच है, यहां आ जा सामने, यहां आ जा, एक वहां बैठ जाओ सामने। मुझे तुम लोग नहीं दिखते हो ना, प्रॉब्लम यहाँ है, गड़बड़ हो जाती है। चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैं ये वाला पॉइंट इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। अच्छा बताओ, चलो कैसे करेंगे बताओ। क्या क्या चाहिए फोर्स के लिए? फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए? आर एफ साइन थीटा। एक तो तरीका ही है। दूसरा तरीका यह है कि मैं हमेशा ही 90 डिग्री वाला कंसीडर कर लेता हूं और पैरेलल वाला 0 कर देता हूं, ये भी अच्छा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, एक कंपोनेंट में तोड़ लेता हूं सबको। ठीक है, वो भी अच्छा है। तो मैं कंपोनेंट में तोड़ूंगा, जैसे ही देखो ध्यान से, ऐसे ही बना हुआ है। सेंटर में एक ओ पॉइंट है, यहां पर ए पॉइंट है, और कितना डिस्टेंस है भाई? 10 मीटर। कितना डिस्टेंस है? 10 मीटर। नाउ वन फोर्स इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन? What is it? 100 meters, 100 Newton, sorry. So F1 is 100 Newton and the angle is 30 degree. जरा component बनाना. One component will be 100 cos 30 degree. How much? जल्दी बोलो, कितना आया? 50√3 न्यूटन। समझ में आ गया? अच्छा इसका देखो जरा, 100 sin 30, तो बताओ कितना आया भाई? 50 न्यूटन। ठीक है, फ्रॉम वेयर वी आर टेकिंग टॉर्क, अबाउट विच पॉइंट वी आर टेकिंग टॉर्क? O. So this will be the distance R. So this will be R. What is R here? 10. तो टॉर्क 1 किसकी वजह से बताओ? टॉर्क ड्यू टू force F1. But when I say torque due to F1, what I need to write also? What is important? About which point? About. So about O. Getting my point or not? So we are doing first one. About O. So now tau 1 will be, what is R? Distance is 10 into, can this will give torque? बोलो, R और 50 न्यूटन, इज देयर एनी टॉर्क? देखो R भी इधर ही है और ये भी इधर, क्या घुमा पाएगा? बोलो, रोटेट कर पाएगा इसको? नहीं रोटेट कर सकता। नहीं रोटेट कर सकता तो इसका टॉर्क 0 हो गया। तो ओनली टॉर्क इज ड्यू टू, तो कितना आ गया? 500√3 न्यूटन मीटर। क्या यूनिट है भाई ऐसा यूनिट टॉर्क की? न्यूटन मीटर। आर एफ साइन थीटा की तो यूनिट होती ही नहीं है, तो साइन थीटा की यूनिट नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? अच्छा डायरेक्शन और बता दो जरा जल्दी से। डायरेक्शन, ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स है F1 का कंपोनेंट ये वाला। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। बोलो, इफ इट इज एक्सेस एंड वी आर अप्लाइंग फोर्स हियर, इन विच डायरेक्शन इट विल रोटेट? इधर रोटेट करेगा ना। सो इट विल ट्राई टू रोटेट इन विच डायरेक्शन? इट विल ट्राई टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन। इज इट ओके और नॉट? और जब ऐसे कोई घुमा रहा है तो टॉर्क किधर हो गया? टॉर्क किधर चला गया? कोई चीज घूम रही है इधर तो बोलो, इनटू। सो इसका डायरेक्शन क्या है? क्रॉस, इनटू द पेपर। बोलो, समझ में आ गया अच्छे से? तो ये वाला टॉर्क इनटू है और कुछ टॉर्क क्या आएगा? आउटवर्ड आएगा, है ना? समझ में आया? अच्छा चलिए तो, अच्छा दूसरा फोर्स बताइए, कौन सा फोर्स लग रहा था भाई? 200 न्यूटन लग रहा था ना, F2।
तो अच्छा इसका एंगल भी दे देता हूं मैं, इसका एंगल भी लिख लो भाई, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख लो, कोई बात नहीं। इसका मैं जानबूझ के ऐसा देता हूं 53, ठीक है, डेलिबरेटली आई एम गिविंग लाइक दिस 53 डिग्री। चलो अब जरा बताना ध्यान से, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F2 अबाउट विच पॉइंट O, बताना जरा टॉर्क कितना आएगा भाई, टाउ टू कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ टॉर्क कितना आएगा। इसका टॉर्क एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर, एक कंपोनेंट ऐसे करना पड़ जरूरत है, बोलो। अबाउट ओ निकालना है, ओ पे ही फोर्स लग रहा है, अबाउट ओ निकालना है, ओ पर ही फोर्स लग रहा है। अब तुम सोचो, ये बुक कॉपी दे वापस, मैं यहां पे फोर्स लगा के, यहां पे फोर्स लगाऊं, इसको ओपन कर सकता हूं कॉपी को, यहां फोर्स लगा के ओपन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। एक्सिस पे फोर्स लगा के ओपन ही नहीं कर सकते तुम। जैसे मैं तुम्हें बोलूं डोर, डोर के ऊपर हिंज के पास फोर्स लगाओ और खोलो डोर को, पॉसिबल है, बताओ। जैसे ये वाला देखो, ये वाला मैंने ओपन किया, अब कोई यहां फोर्स लगा के इसको बंद कर दे, पॉसिबल है, यहां पॉसिबल है, पॉसिबल है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो टॉर्क अगर उसी पॉइंट पे या एक्सिस पे लग रहा है या एक्सिस से पास हो रहा है, जो फोर्स का लाइन है वो अगर एक्सिस से पास हो रही है या दोनों सेम डायरेक्शन में है या एक्सिस पर ही फोर्स लग रहा है, तो टॉर्क कितना आएगा, 0। तो यहाँ एंगल नहीं है, यहाँ डिस्टेंस 0 है, RF2 sin थीटा। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, R ही 0 हो गया है, क्या 0 हो गया यहां पर, R 0 हो गया, और R 0 तो सब 0। क्या टॉर्क समझ में आ गया, टाउ टू कितना है, टाउ टू कितना है, सही समझ में आ गया। अच्छा मैं क्वेश्चन थोड़ा देर लिए वापस चलते हैं और एक क्वेश्चन बदलते हैं। क्या क्वेश्चन बदल रहा हूं मैं बोल रहा हूं टॉर्क एट पॉइंट ए निकालो। सो इफ आई फाइंड आउट टॉर्क एट ए, तो बताओ F1 का टॉर्क कितना होगा, यहां तक समझ में आ गया ना। अब फिर से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर टॉर्क एट ए निकालना है, टॉर्क अबाउट ए निकालना है ड्यू टू फोर्स F1, कितना आएगा जरा बताओ, 0 ही आने वाला है। क्यों, F1 कहां लग रहा है, एक्सिस पे। ऐसे ही बी, अबाउट बी, अबाउट बी, व्हाट इज द टॉर्क ऑफ 50 न्यूटन ड्यू एट अबाउट बी, अगेन 0। अगर मैं फिर क्वेश्चन बदलूं, सी पे कर दूं, तो कितना, किसका 0 हो जाएगा टॉर्क, F4 का, किसका 0 हो जाएगा, F4। समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके जब जब मैं पॉइंट बदलूंगा, सो अबाउट दीज पॉइंट्स क्या हो जाएगा, अलग अलग फोर्स का टॉर्क 0 होगा। तो अभी किसका 0 है जरा बताइए, F2 का। अब क्योंकि अभी F2 लग रहा है एक्सिस पे, फिर मैं एक्सिस बदल दूंगा, फिर दूसरा क्वेश्चन हो गया, फिर मैं एक्सिस बदल दूंगा, फिर तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसीलिए कितने क्वेश्चन बन गए इसमें, 4 क्वेश्चन बन गए, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए समझ में आया प्रांजल, चलो नेक्स्ट करो। कितना है आगे भाई, एक फोर्स और लगा है, कितना दूर लगा है, हाउ मच डिस्टेंस, 5 मीटर, एंड व्हाट इज द फोर्स, फोर्स इज 50 न्यूटन, एंड दिस इज F3, एंड एंगल इज 90 डिग्री, एंगल इज, सो बताइए टॉर्क, बताइए जल्दी से, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F3 अबाउट O। इसका मतलब इट इज वेरी नेसेसरी, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, whenever they ask torque they have to give, or you need to ask by which force. If I ask find out torque, so your question should be by which force and about which point, ठीक है, टॉर्क ड्यू टू which force and about which point, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए कितना आया टॉर्क, जल्दी बताओ टॉर्क। टाउ 3 ले लेते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस 5, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द फोर्स 50 इनटू sin 90 डिग्री, तो मैंने क्या लगाया, RF sin थीटा लगाया, सो इट इज 250 न्यूटन मीटर। ये हमारा टॉर्क है। डायरेक्शन बताओ भाई, डायरेक्शन बताओ जल्दी, क्रॉस या डॉट, क्रॉस या डॉट, जल्दी बताओ, नहीं सीखोगे नहीं आएगा, क्रॉस या डॉट, बोलो किधर घुमाएगा। अगर इधर फोर्स लगे, एक्सिस अब यहां आ गया, फोर्स यहां लग रहा है, तो किधर घूमेगा बताओ,
फोर्स नीचे हो गया ना, अरे यहां से घुमा रहे हैं, इधर खींच रहे हैं इसको, और यहां ये एक्सिस है, तो बोलो किधर घूमेगा, किधर घुमाएगा, सही है क्या? और अगर इधर घुमाएगा तो फिर भी क्या जा रहा है, टॉर्क इनटू द पेपर। डायरेक्शन मिल गया, डायरेक्शन इज क्लियर और नॉट, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ये भी हो गया। क्या लास्ट वाला तुम खुद फाइंड कर सकते हो क्या, लास्ट वाला एक बार ट्राई करना जरा, F4 के लिए T4 निकालो जरा फटाफट। वन मोर थिंग, टॉर्क ड्यू टू F4 अबाउट पॉइंट O, अबाउट पॉइंट O। तो चलिए, अच्छा फिर से ब्रेक कर लीजिए, कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिए। सो ब्रेक द कंपोनेंट्स। सो if it is like this, F4 is this way, one is this, another is this, this will be F4 cos 30 degree and this will be F4 sin 30 degree। चलेगा? जरूरी नहीं है, they can give you 30 degree here, they can give you 30 degree here, तो जरूरी नहीं है साइन का कंपोनेंट ही धरा है, बट यू हैव टू चेक अबाउट विच डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है आर से देखना है कौन परपेंडिकुलर है, साइन थीटा कोस थीटा नहीं देखना है, ठीक है? अगर गिवन है तो वो यहां भी दे सकता है, जब मैं देखूंगा तो यहां आ जाएगा कॉस थीटा, यहां आ जाएगा साइन थीटा, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हमें बस देखना है परपेंडिकुलर और पैरेलल टू आर, परपेंडिकुलर टू आर और पैरेलल टू आर चेक करना है। तो जरा बताइए, टॉर्क F4 will be equal to, what is the distance, what is the force, which force is creating torque, which force is creating torque, F4 sin 30, so 10 into F4, how much F4, 200, and 30 sin 30 is 1/2, so कितना आ गया भाई, 1000 Newton meter। Is that okay? And now what is the direction, tell me the direction, tell me the direction everyone, again inward or नहीं, into the paper, सही है? अब now tell me, all forces are okay for you or not, all torque are okay for you or not? Yes, sir. How to get the distance, how to take the perpendicular vector, इसी से क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन देगा करने के। हाँ, क्या चीज, थीटा, थीटा कहीं भी दे सकता है इन क्वेश्चन, इट इज नॉट नेसेसरी ना कि वो जो मैंने क्वेश्चन में पढ़ाया दैट इज अ डिफरेंट थिंग, जो मैंने थ्योरी में पढ़ाया था ना, that angle they will give here only, okay, this angle is here, for me it is here because I want perpendicular component as sine, but they can give any angle na, because if it is theta then it will be, so angle can be anywhere, ठीक है? but you need to look for perpendicular to this R and parallel to the R. If it is force parallel to R, zero torque, if it is perpendicular, maximum torque, this you need to check, ठीक है? don't look for theta, ठीक? if they ask formula then you can write RF sin theta। is that okay everyone? is there any doubt? लेकिन अभी क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन, टेल मी द क्वेश्चन, नेट टॉर्क, कितने टॉर्क लग रहे हैं? नाउ टेल मी, इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी? टॉर्क इज अ स्केलर और वेक्टर? ऑब्वियसली वेक्टर। क्या है? वेक्टर। डायरेक्शन बता रहे हैं ना भाई, ऐसे ऐसे करके डायरेक्शन निकाल रहे हैं उसका। सो नाउ ऑल आर इन सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन। सो बताइए, ऐड करूं या सबट्रैक्ट करूं? सारे वेक्टर एक ही तरफ हो तो क्या करना पड़ता है? क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, क्वेश्चन भी आया था ना जो तुम गलत करके आए। जल्दी बताओ, सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा? ऐड कर दीजिए। तो नेट टॉर्क कितना आ गया बताइए? सो नेट टॉर्क इज, नेट टॉर्क अबाउट ओ, क्या आ गया जल्दी बोलो? τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τ4। जल्दी बोलिए कितना आया? पहला बताओ, पहले फर्स्ट वाला बोलो कितना था? τ1 कितना था भाई बोलो? 500√3। 2 कितना था? 2 0। τ3 कितना था? 250 एंड लास्ट वन इज 1000। तो ये आ गया हमारा 1250 प्लस 500√3।
ठीक है, और न्यूटन मीटर, थोड़ा बहुत इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 500 कॉमन लेके ऐसे करके वो प्लस में √3 में लिख सकते हैं, अदरवाइज √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, वो रख के सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या क्लियर है, समझ में आया नहीं? अच्छा, कोई टॉर्क अगर अपोजिट आया था तो क्या करते बस उसको माइनस ले लेते, उसको क्या ले लेते, माइनस कर देते। समझ में आया? अब तुम्हारी मर्जी, इट इज अप टू यू वेदर यू आर टेकिंग ऑल डायरेक्शंस इनवर्ड, all direction which are inward you can take plus or minus according to you, but if you are taking all direction inward as positive, so outward वाली कैसे लोगे, नेगेटिव, आउटवर्ड वाली क्या लोगे, और आउटवर्ड अगर पॉजिटिव ले लिया तो इनवर्ड कैसा लोगे, नेगेटिव लोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके तुम सॉल्व करोगे। क्या समझ में आया सबको अच्छे से? जल्दी बताइए फटाफट। इज दैट ओके एवरीवन? टॉर्क का खेल समझ में आया?